Good morning, student. Good afternoon, student. Now, again, I am continuing with the third chapter of class 12 physics. Now, today's my topic is Kirchhoff's law. एक बहुत important laws हैं, rules हैं. Kirchhoff's law earlier we have studied in class 10th. You have studied in class 10th the equivalent resistance of the combination in series and parallel. Parallel series में आप लोगों ने 10th class में पढ़े थे. And on the basis of these combination we can calculate the current across the resistors. So resistors के में हम क्या कर सकते थे, उनके हेल्प से potential difference current की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. But in some situations, in complicated circuits, so those rules cannot be applied. So different parts में हमें current निकालने के लिए, potential difference निकालने के लिए हम कुछ basic किरचॉफ्स लॉ रूल होता है, उस किरचॉफ्स लॉ को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट इज जंक्शन रूल. देयर आर टू रूल्स एंड दिस इज द किरचॉफ रूल. सो देयर आर टू रूल्स. फर्स्ट इज द जंक्शन रूल. सो जंक्शन रूल. सो व्हाट इज जंक्शन? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जंक्शन क्या होता है. जंक्शन इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वीडियो आउट ऑफ फोकस हो गया था तो इसलिए जाना पड़ा. सो व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर कंडक्टर्स. अगर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स एक पॉइंट पे मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जंक्शन. दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड जंक्शन. सपोज there are two conductors meeting at a point. This point is called junction. So let so according to the first rule, that is KCL, Kirchhoff's current law भी बोलते हैं इसको. This is KCL, Kirchhoff's current law, because it is based on the conservation of charge. The conservation of charge पे depend करता है. And junction does not have any charge. जो junction होगा उस पर कोई charge नहीं होगा. So according to this rule, the algebraic sum of currents at junction is 0. That is sigma I is equal to 0 because junction does not have any charge. Whatever the charge or current is entering to the junction, that must leave the junction. So let this is I1 current, I2 current, and let I3 and I4 are outgoing currents. So I1 and I2 are incoming currents, I3 and I4 are outgoing currents. So according to this law, that is I1 plus I2, that is minus I3, and this is minus I4 is equal to 0. So we are considering a sign convention here. So we assume that incoming currents are positive and outgoing currents are negative. So whatever the amount of current is entering into the junction, that must leave the junction. So that is I1 is equal to I plus I2 is equal to I3 plus I4. That is sigma of current I in, that is sigma, that is sum of all currents, that is I out. So जंक्शन से जितनी करंट जंक्शन से जितना करंट इन हो रहा है उतना ही करंट क्या होगा, आउट होगा. So junction does not have any current.
So incoming current, the sum of all incoming current must be equal to the sum of all outgoing currents. For example, अगर suppose this is a current 3 ampere and it is 4 ampere, and what must be it? What is the value of I1, and suppose this is 1 ampere, and what is I current I2. So अगर हम सिंपल इसको अप्लाई करें in this diagram, so according to first law, the algebraic sum of currents at any junction is 0. So this is first junction J1 and it is second junction J2. So at J1 there are two currents are meeting and the sum of these currents is 5 ampere. Oh, sorry, 7 ampere, 4 ampere plus 3 ampere, and this is I1 must be 7 ampere. Now 7 ampere current is entering to the I2 junction, that is J2 junction. अब J2 जंक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है 7 एम्पियर. अब 7 एम्पियर में से कितना हो गया 1 एम्पियर इधर निकल गया अपर साइड अपर ब्रांच में. एंड व्हाट इज I2? दैट इज 7 minus 1, this is 6 एम्पियर. So at every junction the sum algebraic sum of all current is 0. So इस तरीके से हम क्या करेंगे फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं एंड दिस इज नोन एज KCL, करंट किरचॉफ लॉ, और जंक्शन रूल भी बोल देते हैं इसको, and because it is based on the conservation of charges. So this is the first law. Now then second law, which is also very important. So now this is the second law, second rule, that is loop rule. What is loop? Loop is a closed conducting path, consists of several resistors and cells or batteries. So a closed conducting path. So suppose this is a resistance R1, that this is a cell, again resistance, so suppose this is a loop which consists of various resistors. There are 4 resistors here and 2 cells. I have taken the 2 cell here. So that is E1, E2, R1, R2, R3 and R4 are the resistances here. So according to the second rule, in a closed loop, the algebraic sum of change in electric must be 0, is 0. That is delta V is equal to 0. That is change in potential. Change in electric potential around any closed loop must be 0. That is 0. This is known as second law. So जितने भी change हो रहे हैं potential के in the closed loop वो क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए according to the this law. And this is the statement of the second law.
द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। अभी हमने दो सेल लिया है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे इसको रूल को अप्लाई करने के लिए। अब सपोज हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, हमें साइन कन्वेंशन यूज करना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन के लिए एनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट you have to consider positive or negative as your convenience. Suppose I have assumed that current is flowing anti-clockwise. Let this is current I. In this branch I, here is I. So you have to assume any direction, clockwise direction or anti-clockwise direction, and it depends on you what you consider. You consider clockwise direction positive or anti-clockwise direction positive, as it is according to your convenience. आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन का लेंगे आप पॉजिटिव ले सकते हैं। नाउ एनी इंक्रीज इन पोटेंशियल, that is taken negative, and any decrease in potential, this is positive. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लूप के अंदर कोई भी डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल में, देन वी हैव टू कंसीडर दैट पोटेंशियल इज नेगेटिव। वो क्या लेना है आपको? नेगेटिव लेना है। और जो डिक्रीज हो रहा है वो क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। ठीक है ना? तो वो क्या लेना है आपको? डिक्रीज या पॉजिटिव? एक्चुअली आज बार बार आउट ऑफ फोकस हो रहा है, पता नहीं क्यों। बार बार प्रॉब्लम हो रही है, आउट ऑफ फोकस हो जाता है। So any increase in potential is taken negative, or any decrease in potential taken positive. What does it mean? इसका मीनिंग क्या है? Suppose current is flowing in this direction, downward direction में इस ब्रांच में फ्लो हो रही है, and this is smaller plate, a smaller line. This is the negative at lower potential, and longer line means it is at higher potential. So when current is flowing from lower potential to higher potential, it means the potential, change in potential is increasing. So now change in potential increasing means we have to take that potential is negative. So we have to consider the EM of that cell is negative. उसको हमें क्या करना है? नेगेटिव कंसीडर करना है। और सपोज इन दिस ब्रांच अगेन करंट इज फ्लोइंग, यहाँ से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, सो EMF इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? EMF डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो दैट EMF वी हैव टू टेक इन द पॉजिटिव। तो इसकी हमें क्या वैल्यू लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है ना? और एक सिंपल मेथड और होता है, अगर नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो हो रहा है, अगर नेगेटिव टर्मिनल में लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो होता है, उसको हमें क्या लेना है? नेगेटिव लेना है उस EMF को। अगर पॉजिटिव में बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट हो रहा है, एंटर हो रहा है करंट, तो उसका EMF हमें क्या लेना है? पॉजिटिव लेना होता है। सो अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? सपोज द चेंज इन पोटेंशियल, सब सारे पोटेंशियल निकालते हैं। changes in potential. So change in potential निकालते हैं, that is VA minus VB. That is I into R1 according to the Ohm's law. Then B and D, VB minus VD. Here is negative and this is positive. It means the electric potential is increasing. So we have to consider its value negative. So that is minus
EO. Now then VC VD minus VE, that is इसमें कितना है, R2 में I करंट है, that is I into R2. Again E और F, I into R3. Then F and G. Sorry, this is G. F and G. So VF minus VG. So here is cell. यहाँ पे F और G के बीच में आया cell. So cell current is entering into the positive terminal. So EF will be positive. या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को करंट जा रही है. This is a higher potential. It is a lower potential. So current is flowing from higher potential to the lower potential. So we have to consider the sign of EMF is negative. So तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज हो रहा है तो इसको हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है. सो दैट इज E2. दिस इज इक्वल टू E2. Now then V G minus VA, that is current, product of current and resistance, R4. So all these are the changes potential in this loop. इस loop के अंदर इतने सारे changes हैं potentials के, and we have what we have to do here now, add all. सबको हम ऐड कर देंगे. So VA कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएंगे. So left hand side is 0. So that is 0 is equal to I into R1 minus E1 plus I into R2 plus I R3 plus E2 plus I R4, and that is I R1 plus I R2 plus I R3 plus I R4, and this is equal to E1 minus E2. ये आपका क्या हुआ, E1 minus E2. So that is sigma IR and this is sigma E. This is another form of the Kirchhoff's second law. So product of sum of the product of resistance and their respective currents is equal to the net EMF of the loop. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. So what is here? This is sigma E. So product of current और resistance, जितने भी current resistors हैं उनके अंदर current, उनका product, sum of all products of current and resistors on one side, and another side that is the sum, algebraic sum of all EMFs of the cell. So here is E1 minus E2. What is the sum of EMFs of the cells in the network? Minus E2. So E1 minus E2 हो. अगर हम यहाँ नेगेटिव लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं then E1 plus E2 होता. So we have to change the sign according to the direction what you have considered initially. So कोई भी डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन नेगेटिव ले सकते हैं करंट की, डिपेंड्स ऑन यू. सो मैक्सिमम जिस डायरेक्शन में करंट होती है उसी को हम पॉजिटिव ले लेते हैं. So you can consider clockwise or anti clockwise. So यहाँ पे स्टूडेंट्स मेन फोकस क्या है आपको, व्हाट इज द साइन ऑफ EMF. इसका EMF की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी ये आपको निकालना है. किस तरीके से निकालना है मैंने बताया है अभी. अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है then you have to take it negative, और डिक्रीज हो रहा है you have to take the positive value. या फिर सिंपली करंट जिस नेगेटिव टर्मिनल में लोअर पोटेंशियल में अगर एंटर हो रही है तो वो क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेनी है. और पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रही है तो वो आपको प्लस साइन में, इसमें पॉजिटिव में एंटर हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, E2 पॉजिटिव होगा. और यहाँ पे नेगेटिव में साइन में, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल में नेगेटिव प्लेट में एंटर हो रही है, दैट इज E1 आपको लेना है नेगेटिव. सो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं किरचॉफ्स, दिस इज द सेकंड रूल. अब इसको मोर क्लियर करने के लिए मैं अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स ले रहा हूँ. दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको कराऊंगा ऑन द बेस्ड ऑफ द
Kirchhoff's law, Kirchhoff's law. So आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. So this is the question. So this is a network. So here is cells, 4 cells, E, F, G, H. ये 4 cells हैं. And you can consider the internal resistance or external resistance that depends on you. And these are the resistances 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm and again 1 ohm. जो इनके resistances हैं वही इनके EMF हैं. That is 1 volt and this is equal to 2 volt and it is equal to 1 volt again and this is equal to 3 volt. So these are the 4 cells. E, F, G, H. Longer side represent higher potential, that is the positive positive terminal, that is the positive terminal of the battery, and this is 2 ohm. All the resistances are in ohm and all the EMFs are in volts. So we have to calculate what is VB minus VD. First part में हमें क्या करना है? What is the potential difference between the points B and D? And second, what is the potential difference across the cell G and H? G और H में कितना potential difference होगा वो हमें निकालना. So सबसे पहला क्या होता है आपको क्या इसमें what is current distribution? सबसे पहले आपको current distribution करना है. Current किस तरीके से distribute हम करते हैं. So let this is the current I1. Here current is I1. Now suppose this current flow in this cell, in this resistance up to D, and here is it enters its first junction. यहाँ पर एक जंक्शन मिलेगा इसको, and junction में करंट क्या होगी? At the every junction the current will distribute. Let this is I2. ये हमने I2 ले लिया और यहाँ पे कितना बचेगा? I1 minus I2. ये कितना हुआ? यहाँ पे G सेल है, suppose this is I1 minus I2. So again I1 minus I2. This is I1 minus I2. Here is I1 minus I2. Now at junction B, at point B, so there are two currents are meeting. So here I2, here I1 minus I2. इस वाले ब्रांचेस CB से क्या आएगा? I1 minus I2 आएगा and DB के थ्रू कितना जा रहा है? I2 जा रहा है. दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगी. ऐड होने के बाद में कितना हो जाएगा? I1. सो हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा. जितना हमने करंट लिया था उतना ही सेल वापस ले गया. अगर ये हमें मिल जाता है जितना सेल यहाँ से इसने हमने एज्यूम किया I1
जितना करंट यहाँ से एज्यूम किया उतना ही करंट अगर हमें वापस मिल रहा है तो हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सही है। अगर नहीं मिलता है तो आप फिर से कीजिए उसको, कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। सो फाइंड दैट एरर। तो जितना हमने करंट यहाँ से लिया हमें उतना ही करंट हमें मिल गया। एंड दिस इज हाउ आई अप्लाई द फर्स्ट लॉ। अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया है, किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ अप्लाई किया है। सो फर्स्ट लॉ हम फर्स्ट रूल किस लिए अप्लाई करते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट अक्रॉस द वेरियस रेजिस्टेंस। नाउ अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे कोई भी दो क्लोज लूप लेना है और उसमें किरचॉफ सेकंड लॉ। बेसिकली किरचॉफ सेकंड लॉ होता क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ में क्या होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, वो कंजर्वेटिव होते हैं नेचर, तो उनकी वजह से क्या होता है, दैट इज द वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस की एक प्रॉपर्टी होती है, तो वर्क डन क्या होता है, दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ओनली, नॉट बाय द पाथ फॉलोड। सो अगर पूरे क्लोज लूप में लेंगे तो वर्क डन मस्ट बी जीरो। दैट्स व्हाई पोटेंशियल जो चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड लॉ। सो उसको हम केवीएल भी बोल देते हैं। सो नाउ देन इन लूप consider two loop here. In loop A D B A, A D B A, हमने ये वाला डायरेक्शन क्या ले लिया, कंसीडर हमने we have taken this direction positive, A D B A D B A, ये हमने डायरेक्शन क्या ले लिया, हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। सो if we walk according to this along the path A D B A, अगर हम इसकी तरफ चलेंगे so all the currents along this direction are positive and against that direction are negative. So हमको क्या करना है, जितने भी चेंज इन पोटेंशियल हैं वो लिखने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, देन राइट हैंड साइड इज जीरो। सो अकॉर्डिंग टू KVL, दिस इज अ किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं, किरचॉफ सेकंड रूल भी बोल देते हैं, लूप लॉ, इसको लूप लॉ भी बोल देते हैं। सो हियर इज सबसे पहला पोटेंशियल कहाँ चेंज हो रहा है, दैट इज हमारे पास पहली बैटरी मिली F। सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, सो दिस इज अ पॉजिटिव के अंदर एंटर हो रही है, सो EMF इज पॉजिटिव, सो यू हैव टू कंसीडर द EMF पॉजिटिव। सो दिस इज 1 वोल्ट है तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे 1 है, या फिर मैंने बताया था हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को करंट जा रहा है, सो दैट इज अगर हायर टू लोअर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट इज वी हैव टू टेक द EMF इज पॉजिटिव। सो ये 1 सेकंड, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सो ड्रॉप ओवर, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू IR, प्रोडक्ट ऑफ IR, I कितना है यहाँ पे I1 और R कितना है 1 इंटू I1, रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट इज I1, अगेन हियर इज रेजिस्टेंस I2, इसकी डायरेक्शन जो हमने एज्यूम किए वही डायरेक्शन चल रहे हैं, along दिस डायरेक्शन चलेंगे हम A B D A, सो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, सो दैट इज 2 इंटू I2, अगेन B पर पहुंच गए हम, B से इधर को आएंगे, सो हियर वी गेट रेजिस्टेंस हियर, सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ohm resistor, that is 2 into I1. Now again we get cell, we find cell here, and here current is entering in the negative terminal, so negative terminal में हो रही है, तो we have to consider the EMF negative, so यहाँ पे negative terminal में हो रही है, that is -2 volt and this is equal to 0 वोल्ट, हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, that is equal to 0। so ये हमारा complete एक लूप हो गया। so collect 3I1 plus 2I2 is equal to 1, this is the first equation। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया, हियर I1 3I1 2I2 is equal to 1। सिमिलरली हमें क्या करना है, नाउ इन लूप B D C B,
apply KVL. B D C B या DC B D, इसमें हमको अप्लाई करना है। डी से हम स्टार्ट करते हैं। सो डी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी गेट द सेल। ईएमएफ इसका कितना है? 3 वोल्ट है। सो बिकॉज करंट इज एंटरिंग इनटू द नेगेटिव टर्मिनल और लोअर पोटेंशियल से है, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल? लो टू हाई। सो वी हैव टू कंसीडर नेगेटिव ईएमएफ हियर अगेन। इसके बाद में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? रेजिस्टेंस। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट? वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज I1 minus I2 into 3, again I1 minus I2 into 1, यहाँ पे कितना हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, ये प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड करंट, अगेन वी गेट सेल। सेल का ईएमएफ यहाँ पे कितना है? 1 वोल्ट एंड दिस इज व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल? हाई टू लो। So we have to consider positive value and this is equal to +1. यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 हुआ because current is entering to the positive terminal and here is again B से D. Now the current is against the direction what we have assumed. So हमने डायरेक्शन ये वाली हमने क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है, लेकिन ये क्या हो गया? इसके अगेंस्ट हो गया। B से D की डायरेक्शन when we move from B to D, we find current is in opposite direction. That's why we consider negative sign and this is 2I2 and this is equal to 0. So इस तरीके से हमने पूरा का पूरा एक क्लोज लूप ले लिया। Now this is 3I1 minus 3I2 plus I1 minus I2 minus 2I2 and this is equal to -3 and +1 2 and right hand side will be 2. So here I1, एक I1 यहाँ पर है, एक I1 यहाँ पर है, that is 4I1 and I2 3I2 minus 4I2 minus 6I2 is equal to 2 and 2I1 minus 3I2 is equal to 1 and this equation number 2. तो ये हमने दो इक्वेशन बना ली। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या करना है? वैल्यू निकालनी है करंट। सो सॉल्व किस तरीके से करेंगे? या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 9I1 plus 6I2 is equal to 3. Now then multiply equation number 2/2 that is 4I1 minus 6I2 is equal to 2. On adding इसको हम ऐड करेंगे that is 13I1 is equal to 5. So I1 is equal to 5/13 एम्पीयर। सो हमें यहाँ पे क्या होगा? करंट की वैल्यू मिल गई I1 is equal to 5/13। So here I1 is equal to 5/13. So substitute this value in any equation, we get I2. So मैं अब इक्वेशन नंबर इसको 2 में रख रहा हूँ। So 2 into 5/13 minus 3I2 is equal to 5/13. Sorry, 1. And this is equal to 5/10/13 minus 1 is equal to 3I1 and this is minus 3/13 is equal to 3I1 and this is I1 is equal to minus 1/13
13 एम्पियर। सॉरी, दिस इज I2। तो I2 की वैल्यू कितने होंगे? -13, 1/13 -1/13 -1/13 एम्पियर। तो ये I1 की वैल्यू हुई, ये आपके पास I2 की वैल्यू होगी, जो सर ने सिंपली सॉल्व किया इक्वेशंस को। नाउ these are the currents, the value of currents I1 and I2। अब हमें क्या निकालना है? नाउ द क्वेश्चन, अगर हमें डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट रेजिस्टेंस में अगर करंट वैल्यू हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी। Here are I1 and minus I2, subtract these values, you will get I1 minus I2 and we can find the value। Here हम निकाल ही लेते हैं I1 minus I2। So I1 minus I2 is equal to, this is equal to 5/13 minus -1/13 and this is equal to 6/13 एम्पियर। ये हमारा 6/13 एम्पियर हो गया I1 minus I2। नाउ व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? हमने पूछा था व्हाट इज VB minus VD। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आता है व्हाट इज VB minus, so VB minus VD is equal to I into R VD। what is the value of I? That is I2। what is I2? I2 की वैल्यू कितना है? That is minus। माइनस का मतलब क्या है? दिस इज अगेंस्ट द डायरेक्शन व्हाट वी आर एज्यूम। हमने डायरेक्शन B to B लिया है, इसका मतलब क्या है? दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट ये करता है, करंट का नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है करंट क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, जो हमने एज्यूम किया। So what is VB? The magnitude of I2 is equal to 1/13 and what is 2 ohm resistance? This is equal to 2/13 volt। So this is VB minus VD। Now then second part, what is the potential difference across cell G and H? So I1 की वैल्यू हमने इतना निकाला है, I2 की वैल्यू इतना निकाल दिया हमने। तो मैं इसको मिटो रहा हूँ, यहाँ पे रब कर रहा हूँ। So here is I1, here is I2। So I1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, जिससे, और I2 की वैल्यू ये है। तो मैं इसको पूरे को ही रब कर देता हूँ। और अब हमें निकालना है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी सेल देखेंगे कहाँ पर? जी हाँ। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो होता है V माइनस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। व्हाट इज EMF? EMF इज 3 वोल्ट, 3 and current is entering into the negative terminal, so it means current will be negative। यहाँ पे कितना हो गया? this is what is हम दूसरे तरीके से करते हैं इसको। दैट इज सपोज यहाँ पर हमने ले लिया D डैश, सो VD माइनस VC, VD माइनस VC, this is equal to VD minus VD dash minus VD dash minus VC। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं VD minus VD dash minus VD dash minus VC। So this is the potential difference across the cell। So what is it? Here is negative to positive, that is 3 volt। The potential is negative to positive जा रहा है, so -3। Here is current, current क्या हो रहा है? इधर लीव कर रहा है, this will be negative and what is I1 minus I2 minus 6/13 and what is 3 ohm। ये इतना हुआ।
and this is equal to 3 plus 18 upon 30. So थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज VC और ये डी होगा. दिस इज VC VD dash and VD dash minus VD, and this is equal to 3 into what is the current? Current is 6 upon 13, and this is minus, and this is equal to 3, and this is equal to 18 upon 13 plus 3. So इतना आपका VC minus VD, so we can write VC minus VD dash minus VD dash minus VD, and this is equal to current अगेंस्ट हो गई है तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन ले लिया, दैट इज 3 इंटू माइनस आप यहाँ लिख सकते हैं, and potential is 3, so on solving, and this is the potential drop across the cell G. So V is equal to E minus IR. E यहाँ पे कितना है, that is 3, and current is leaving the potential, this is the terminal potential minus, अगर हम यहाँ पे करते हैं I की वैल्यू कितना है 6 upon 13 into 3, that is 39 minus 18 upon 13, sorry 80, so ये सेकंड मेथड है, ये हमने दो मेथड लिए हैं, दिस इज द सेकंड मेथड and this is the first मेथड. अगर हमने G के अक्रॉस हमें टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VC minus VD, so that is VC minus VD dash minus VD dash minus VD. so करंट क्या है, हमने इसमें इधर जा रहा है तो नेगेटिव 6 अपॉन 13 है, माइनस में हो जाएगा, माइनस 6 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे दैट इज माइनस 18 अपॉन 13 एंड प्लस 3, इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे 39, इसे सॉल्व करने पे कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 21 अपॉन 13, या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस आई. सो माइनस साइन कब आता है, जब करंट इज लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल, अगर पॉजिटिव टर्मिनल को ये V इज इक्वल टू E माइनस आई तभी होल्ड करता है, ये नेगेटिव साइन तभी होल्ड करेगा जब करंट क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रही है, सो व्हाट इज E, EMF इज 3 वोल्ट एंड माइनस 6 अपॉन 30 इंटू 3, I कितना 6 अपॉन 30, and what is the resistance 3, on solving it get on solving we get again 21 upon 13 volt. So this is the potential difference across the cell G and across cell H. cell H के across भी हम इसी तरीके से करेंगे, H के across हम cell करते हैं तो V that is
V again E minus IR, and what is E? 1 volt, and current is again entering into the positive terminal here. So but leaving the negative terminal, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में हमें क्या कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल में हमें क्या कर रही है, एंटर कर रही है. तो पॉजिटिव टर्मिनल को लीव करना चाहिए. दिस इज माइनस, ये प्लस हो जाएगा. प्लस आई, व्हाट इज आई? 6/13, एंड आर इज अगेन 1. सो दैट इज 13. दिस इज 19/13. ये आपके पास हो गया VCB. सो VCB आप वैसे भी कर सकते हैं, C डैश अकॉर्डिंग टू दिस रूल. दो रूल बताए मैंने, दोनों में किसी भी तरीके से कर सकते हैं. सो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, बट करंट इज एंटरिंग इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल. तो एंटर कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल में. सो करंट क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव. हमें साइन, करंट का साइन हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव. सो वी हैव कंसीडर इट, या फिर ऐसे कर सकते हैं, दिस इज माइनस, करंट है वी हैव टू टेक इट नेगेटिव. सो ऑन सॉल्विंग वी गेट 19/13. सो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे. ये एक प्रॉब्लम दिया था मैंने. ना एक दूसरी प्रॉब्लम ले रहा हूँ, वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको भी करना. आप आई होप इसको नोट कर लिया होगा, तो आप इसको नोट करिए. मैं एनसीईआरटी से एक एग्जाम्पल लेता हूँ. तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा. तो स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल है. ए बी, these are the point, and this point is C, and it is D. तो दिस इज द एग्जाम्पल. ये आपका एनसीईआरटी पे पेज नंबर 117 पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. हमने 10th क्लास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकाले थे सीरीज और पैरेलल में. उनके बेस पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं सर्किट का. बट वी कैन अप्लाई ऑल दीज फार्मूला इन द सिंपल सर्किट. बट द सिचुएशन इज हियर quite different, quite difficult. So we cannot find the equivalent resistance of the circuit by applying the simple rules. So we have to apply the Kirchhoff's law. So Kirchhoff's law के दोनों ही rules अपनाने हैं, KCL भी अपनाना है, KVL भी. So first we will do the current distribution. हमें सबसे पहले current distribution करना है. We have to apply the first law, first rule, the first law. So कहीं से भी स्टार्ट करें, किसी भी पार्ट से आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से कि ये यहाँ से. सो सपोज सेल इज द सोर्स ऑफ द करंट, इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस. सो हमने कोई भी एक सेल ले लिया, सपोज 5 से हम निकाल लें, दैट इज I1. हमने कहाँ से किया? I1.
अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या होता है, अगर जितना करंट ये जितनी करंट ये सेल दे रहा है इतनी इसको लास्ट में वापस मिलनी चाहिए। I1 अगर ये इसको दे रहा है तो इसको I1 ही वापस मिलेगी आफ्टर द करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज I1 में से यहाँ पे फर्स्ट जंक्शन इसको जब I इस पाथ के अलाउंग जब मूव करेगी तो B पे क्या होगा, फर्स्ट जंक्शन में यहाँ से दो ब्रांचेस निकली, एक दिस एंड दिस। तो यहाँ पे सपोज दिस इज I2 और यहाँ पे कितनी करंट रह जाएगी, I1 माइनस I2। यहाँ पे कितना रहेगा, I1 माइनस I2। सो हियर अगेन I2, यहाँ तक I2 चला, अगेन दिस करंट गेट ए जंक्शन एट पॉइंट ए, यहाँ पे करंट फिर से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, I2 से सपोज ये I3 हो गया और हियर इज I2 माइनस I3। यहाँ पे क्या हुआ, I2 माइनस I3। अब इस पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे इधर से करंट I1 माइनस I2 आ रही है, इधर से करंट I1 प्लस I3 आ रही है, तो यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी, तो ओनली वन वे टू गो। अब ये करंट इस वाले ब्रांच में आएगी 2 ओम रेजिस्टेंस में, 2 ओम में यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दिस इज I1 माइनस I2 प्लस I3, I1 माइनस I2 प्लस I3। अब यहाँ से करंट कितना आ रहा है, I1 माइनस I2 प्लस I3, और यहाँ से कितना आ रहा है, I2 माइनस I3। अगेन D इज द जंक्शन, यहाँ पे D पे जंक्शन पे होगी, दो करंट मीट हो रही है, तो व्हाट इज द सम ऑफ करंट, इसको जब ऐड करेंगे तो I2 कैंसिल, I3 बोथ आर इन अपोजिट, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, I1 बचेगा। सो हियर इज I1। तो जितनी करंट हमने ली थी उतनी करंट इसको मिल गई। सो आवर करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। इसका मतलब क्या है, हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सही है। अब आपको क्या करना है, वी हैव टेकन 3 करंट्स हियर, I1, I2 एंड I3। 3 करंट लिए हैं तो 3 ही लूप लेने पड़ेंगे हमें, और 3 ही हमें इक्वेशन बनेगी। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, I1 और I2 I3, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। अक्रॉस ईच रजिस्टर में क्या होगा, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। एक मिनट के लिए स्टूडेंट्स, आउट ऑफ फोकस हो रहा है फिर से, नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है, नाउ इट इज करेक्ट, बीच बीच में आउट ऑफ फोकस हो जाता है। अब ये हमने फर्स्ट लूप ले लिया हमने, दिस इज द फर्स्ट लूप, दिस इज लूप 1। नाउ मैं ABCD ये अपने लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट लूप में मैंने डायरेक्शन ले लिया, सपोज दिस इज द डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव डायरेक्शन, I have considered anti-clockwise direction positive. So in loop 1 apply KVL, Kirchhoff voltage law, second law। उसमें क्या होता है, according to which the work done over a closed path is zero। So ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे Kirchhoff सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ हमने अप्लाई कर लिया। सो अगेन यहाँ पे कितना है, व्हाट इज, सपोज B से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस 2 एंड करंट इज I1 माइनस I2 into 2। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेक करते रहेंगे, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है नेगेटिव। जो भी आपने डायरेक्शन एज्यूम की है उसके अकॉर्डिंग है तो पॉजिटिव है, उसके अगेंस्ट है तो नेगेटिव है। तो यहाँ पे कितना है, सेकंड रेजिस्टेंस इन दिस लूप इज 2, दिस इज I1 माइनस I2 प्लस, ठीक है। नाउ दैट अगेन हमें और तो रेजिस्टेंस है नहीं, दो ही रेजिस्टेंस है, एक सेल है, इसके अंदर क्या हुआ, एक सेल है, एंड करंट I1 is flowing from negative to positive, it means the potential is increasing, so we have to take the sign of EMF is negative। अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या लेना है, नेगेटिव, या फिर आप करंट की डायरेक्शन देखिए, करंट क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रही है, सो दैट इज हमें क्या लेना है, -5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल चेंज हुआ लोअर टू हाई, सो हाई टू लो हो रहा है तो वी हैव टू टेक अपोजिट साइन, दैट इज माइनस। अगर हाई होता है तो हमें नेगेटिव लेना है, लो होता है हमें पॉजिटिव लेना है। सो दैट इज 2I1, और यहाँ पे कितना लेगा 2I1, दैट इज 4I1
यहाँ पर 2i2, this is minus 2i2 minus 4i2 and plus 2i3 is equal to 5. This is equation number 1. 2i1, 2 plus 2 that is 4. यहाँ पर भी 2 ओम है, यहाँ पर भी 2 ओम है, and this is equal to 4i2 and this is equal to 2i3 and this is equal to 5. This is equation number 1. Now in loop 2, ये लूप आपका 2 हो गया। इस लूप में भी हमने करंट की डायरेक्शन क्या ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो इन लूप 2, लूप 2 में आप करंट की डायरेक्शन रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। कहां से स्टार्ट करते हैं, सपोज बी से स्टार्ट किया, दैट इज 4i2, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट 4i2। तो जो हमने डायरेक्शन ली है दैट इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ से i2 पॉजिटिव लेंगे, 4 हुआ, यहाँ पे हमें सेल लेंगे। अब इट इज एंट्रिंग टू द पॉजिटिव, यानी कि जो चेंज इन पोटेंशियल है दैट इज हायर टू लोअर, प्लस है माइनस है, हायर टू लोअर। तो हायर टू लोअर है तो वी हैव टू टेक द नेगेटिव साइन, so that is minus 10 volt. Again we get resistance 1 plus 1 into what is current, I3। इसमें कितना है, I3 करंट है। now यहाँ पे पहुंच गए। अब इस लूप में जाएंगे, 2 ओम रेजिस्टेंस रह गया। what is the current direction, this is the against the direction what we have assumed, उसके against है तो we have to take negative sign here, so that is I1 minus I2 into 2 and this is equal to 0. Clear students? So here is minus 2i, here is minus 2i1 and minus minus plus 2i, that is 6i4 plus i3 is equal to 10. 10 volt है तो 10 लिखना चाहे लिखिए, and this is equal to equation number 2. ये equation number 2 हो जाएगी, that is 4i2 minus 10, ये 1i1 1i3 ठीक है, minus 2i1 minus i2 into 2 and this is here minus i1 i2 minus 2i1, here is minus minus plus, this is 6i4 plus i3 is equal to 10, correct. So सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, दैट इज माइनस। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल इज चेंजिंग हायर टू लोअर, इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग तो प्लस साइन आएगा, दिस इज माइनस साइन। दिस इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन लूप 3, लूप 3 में करेंगे तो लूप 3 में कोई भी एक डायरेक्शन ले लिया, मैंने ये वाला डायरेक्शन इस बार पॉजिटिव लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई हैव कंसीडर पॉजिटिव। अब मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, सो ए पॉइंट से चलते हैं। ए पॉइंट से चलेंगे, व्हाट इज फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव है, दिस इज माइनस 10, हमने यहाँ पे सॉरी प्लस 10, बिकॉज पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज है तो हमने प्लस लेना है। व्हाट इज I3 plus 1 into I3, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। अगेन इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगा, 2 ओम में, along the direction what we have assumed, that is I1 minus I2 plus I3 into 2, अगेन सेम प्लस I1 नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, I2 minus I3 into 4 and this is equal to 0। यहाँ पे क्या हुआ, अगेंस्ट हो गया करंट की डायरेक्शन, करंट A to D आ रहा है, अगेंस्ट हो गया तो we are taking the negative sign। So this is I1, these are 2I1, I2, here is more minus 4I2 and minus 2I2, this is minus 6I2, I3, that is I3 plus 2I3 and plus 7I3,
oh sorry, 4i3, 4i3, 6i3 plus 7i3, and this is equal to again minus 10. This equation number 3. So i3 into 1 plus i1 minus i2 plus i3 into 2 minus i1 i2 minus i3 into 4. So here is 2i1 minus 2i2 minus 4i2 minus 6i2, 1i3 plus 2i3 3i3 and plus 4i3, that is 7i3. This equation number minus 10. So अगर हमने इसको ऐसे अप्लाई किया हुआ है, this is equal to minus 10. So these are the three equations. We have to solve these two equations. So in these two equations को solve करना है. Solve करने के लिए simply add 2 and 3. 2 and 3 को करेंगे, i1 और i1 कैंसिल हो जाएंगे, i2 के कोएफिशिएंट सेम है, कैंसिल हो जाएंगे. That is 8i3 and this is equal to minus 20. 8i3 is equal to minus 20 and i3 is equal to minus 5 by 2 ampere. This is minus 5 by 2 ampere. So i3 की वैल्यू निकल गई स्टूडेंट्स. So i3 हमने कहाँ लिया था? i3 हमने लिया था a to this branch में 10 वोल्ट. तो 10 वोल्ट i3 की वैल्यू ली है. तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे. अब i3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 या 3 में किसी में भी दो इक्वेशन में रख देंगे तो हमें मिल जाएगी i1 और i2 की वैल्यू. i1 और i2 की फॉर्म में इक्वेशंस है. देन वी विल सॉल्व फर्दर. i1 और i2 की वैल्यू आपको निकाल लेनी है. i3 की वैल्यू मैंने निकाल दी. i1 और i2 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके पहले i3 की वैल्यू रख लेना किसी में भी, या तो इस इक्वेशन में या इक्वेशन में. फर्स्ट इसमें रखना i3, इसमें i3 रखना. तो i1 और i2 की फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी दो. फिर उनको सॉल्व करना, i1 और i2 की आपको वैल्यूज मिल जाएंगी. तो इस तरीके से आप इसको नोट करिए. तो स्टूडेंट्स ये क्या है, माइनस में है. माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट. ये अपोजिट हो गया. हमने करंट इधर ली थी, एक्चुअली इधर ना होकर के इधर हो. नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट कर रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द. ठीक है स्टूडेंट्स. सो आप i1 और i2 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर. ठीक. तो बैटरी डाउन हो गई है शायद ही मोबाइल का. तो ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने किया. किरचॉफ लॉ पढ़ा हमने. किरचॉफ लॉ अच्छे तरीके से करिएगा. और ये दो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं. ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से लिया था, उसको किया था. इन दोनों की प्रैक्टिस करिए. किस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया. नेक्स्ट वीडियो में मैं सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस वगैरह लूँगा. आगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी रहेगा, उनको करूँगा. लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ लॉ. इसलिए मैंने किरचॉफ लॉ पहले पढ़ा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम करेंगे तो हम इसको किरचॉफ लॉ को अप्लाई करके एक लाइन में उसको खत्म कर देंगे. ठीक है. तो किरचॉफ लॉ है, इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए. इसका स्टेटमेंट याद करो. ये एग्जाम में आता है, कोई एक सिंपल क्वेश्चन आएगा. तो लास्ट ईयर जितने प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं वो सारे नेट पर डले हुए हैं. आप उनको देख करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. आपके पास कोई बुक हो, एग्जाम्पल्स हैं. एनसीईआरटी में अभी दो एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं. एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो वीट स्टोन बेस की फॉर्म में है. आगे चल के करेंगे उसको. तो आप इसको नोट करिए. थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.